Welcome students. Today we are going to study computer of class 6. So let's start. So here it is, its contents list. Unit number 2, introduction to Windows, on page number 21. So let's start. So here it is, unit number 2, introduction to the Windows. Microsoft Windows is an operating system. You need a program that runs your computer. This program is called the operating system. Your computer cannot perform anything without an operating system. That's why we install an operating system on our computer. There are many types of operating system. Microsoft Windows is the most common operating system. Microsoft Windows is launched in different versions. Different versions of Windows are Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. आपको एक प्रोग्राम चाहिए होता है जो हमारे कंप्यूटर को चला सके. ये प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाया जाता है. हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए हम अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे इकसाम हैं. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है सबसे आम ऑपरेटिंग सिस्टम है. इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स लॉन्च किए हैं और ये सारे उनके लिस्ट है. टर्न द पेज स्टूडेंट्स. Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 and 8.1, Microsoft Windows 10. In this book we will study about Microsoft Windows 7. अब ये सारे भी जो हैं उनके ही लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर्स के वर्जन हैं. इस बुक में हम Microsoft Windows 7 के बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. पहले हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पढ़ेंगे. The operating system performs a number of functions. Some of them are given below. Number 1, Windows recognize input from keyboard or any other input device. Number 2, it sends output to the display screen or other output devices. Number 3, it keeps the track of files and directions on disk. Number 4, it controls the devices attached to the motherboard. Number 5, Windows provide a software platform on top of which other programs called applications can run. Number 6, it manages all the programs applications on the computer. Number 7, it enables linkage of various computers. This is called a network. Number 8, Windows enables different users to work separately on the same computer. अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो होता है उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें कुछ नीचे दिए गए हैं. पहला है हमारा जो विंडो होता है वो कीबोर्ड से हम इनपुट करते हैं या कोई भी दूसरी डिवाइस से हम इनपुट करते हैं तो वो पहचान लेता है. नंबर 2, हम कोई भी उसको इनपुट देते हैं तो वो आउटपुट करता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू. नंबर 3, वो अपनी सारी डायरेक्टरीज फाइल्स जो हैं डिस्क पर रखता है. नंबर 4, वो सारी डिवाइस जो होती हैं मदरबोर्ड से उन पर कंट्रोल करता है. विंडो एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रोग्राम्स चलते हैं, ये उन्हें भी कंट्रोल करता है. नंबर 6, ये सारे प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस वगैरह जो हैं कंप्यूटर वो मैनेज करता है. ये दूसरे कंप्यूटर्स को लिंक करता है जिससे हमारा नेटवर्क बनता है. अब हमारे जो विंडोज़ होते हैं वो कई यूज़र्स को डिफरेंट विंडोज़ पर काम करने का एक्सेस देता है. मतलब एक यूज़र जो है डिफरेंट यूज़र्स हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं. टर्न द पेज. Number 2, stepping into Windows. When your computer is properly connected to the power supply, press the power button on the system unit. After a while, a welcome screen appears on the computer. After a short time, your computer gets ready for use. You have stepped into Windows. अब जैसे ही आपका कंप्यूटर ठीक से पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड होगा और आप पावर बटन को प्रेस करेंगे सिस्टम यूनिट पर, जो है थोड़ी देर के बाद एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगी और आप अपने विंडोज़ को इस्तेमाल करने के लिए रेडी हैं. आफ्टर स्टेपिंग इनटू विंडोज़, द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज़ द डेस्कटॉप.
द डेस्कटॉप ऑफ द विंडोज़ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब जैसे ही आप विंडोज़ में दाखिल होंगे आप पहले उसका डेस्कटॉप देखेंगे, और जो डेस्कटॉप होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। Desktop and its elements. Number one, desktop. After starting Windows, you see the first appearance on your monitor screen with different icons on it. The display of Windows is called the desktop. अब जैसे ही विंडोज़ स्टार्ट करेंगे आप पहली चीज़ जो देखेंगे अपने मॉनिटर पर वो होंगे डिफरेंट आइकॉन्स होंगे, जहाँ पर हमारा विंडोज शो होता है, हम उसे डेस्कटॉप कहते हैं। आइकन्स, देयर आर डिफरेंट स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप, दीज आर कॉल्ड icons. Each icon denotes a different program, application, file और folder. अब जैसे ही हम अपने खोलेंगे, हम अब डेस्कटॉप देखेंगे, वहाँ पर छोटे छोटे से पिक्चर्स होंगे जिन्हें हम आइकॉन्स कहते हैं। ये हर अलग सिस्टम की अलग आइकॉन होता है। टास्क बार, there is a horizontal bar at the bottom of the desktop. This bar is called the task bar. The task bar is located at the bottom of the task bar by default. You can change the taskbar location on the screen. It can be placed at the right, left, bottom or top of the screen. अब टास्क बार जो है एक हॉरिजॉन्टल बार होता है जो हमारे डेस्कटॉप पर एंड होता है, उसे हम टास्क बार कहते हैं। उसकी जो जगह होती है वो बॉटम में होती है, डिफ़ॉल्टेड बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। हम उसको चेंज कर सकते हैं, राइट में लगा सकते हैं, लेफ़्ट में, ऊपर या नीचे कहीं भी। Notification area. The area on the extreme right of the taskbar is called the notification area. This notification area displays the date and time. There are shortcuts for speakers and wireless network connections and other application shortcuts may also be available in the notification area. अब जैसे ही हम टास्क बार देखेंगे उसके राइट साइड पर एक नोटिफिकेशन बार होगा जहाँ पर हमारे नोटिफिकेशंस वगैरह या स्पीकर्स, वायरलेस नेटवर्क्स और भी बहुत सारी चीज़ों के शॉर्टकट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। टास्क बार, लाइक द बटन्स इन द नोटिफिकेशन एरिया, देयर आर सम बटन्स beside the start button. These buttons are called taskbar buttons. Internet Explorer, computer folder and Windows Media Player buttons are pinned there. More buttons of your favorite or most used application can be pinned here. अब हमारे जैसे कि दूसरे बटन्स होते हैं नोटिफिकेशन एरिया में, यहाँ पर भी हमारे कुछ बटन्स होते हैं जिन स्टार्ट बटन के साथ में, जिन्हें हम टास्क बार बटन्स कहते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंप्यूटर फोल्डर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर या दूसरे एप्लीकेशंस जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं या हमारे फेवरेट हों वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। Number 6, start button. This button is in the lower left corner of the taskbar. हमारे नीचे लेफ्ट साइड पर टास्कबार के स्टार्ट बटन होता है। Desktop icons. The desktop icons display the recycle bin icon only. You can show more icon on the desktop such as computer, internet explorer, documents, etc. अब जैसे कि हमारा डेस्कटॉप होता है वो रिसाइकल बिन सिर्फ शो करता है, यहाँ पर आप दूसरे भी आइकन्स ऐड कर सकते हैं जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। कंप्यूटर, दिस आइकन कंटेन्स डिस्क ड्राइव्स एंड सिस्टम फोल्डर्स। इसमें जो है हमारी ड्राइव्स और फोल्डर्स वगैरह होते हैं। रिसाइकल बिन स्टोर्स डिलीटेड फाइल्स एंड अलाउज टू रिकवर देम लेटर। हम ये जो हमारा रिसाइकल बिन होता है यहाँ पर हमारे डिलीटेड फाइल्स ले जाते हैं जिन्हें हम बाद में रिकवर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, इट प्रोवाइड अ कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर योर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स सेव करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, दिस आइकन अनेबल्स यू टू व्यू वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। यहाँ पर हम अपना इंटरनेट चला सकते हैं। You can add more icons, files और folders to the desktop or you can pin them to the taskbar. अब इससे ज़्यादा भी आइकन्स हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर लगा सकते हैं या फिर हम अपने टास्क बार में पिन कर सकते हैं। कम ऑन नेक्स्ट पेज। Working with the Windows, we interact with our computer mostly with the help of a mouse or a keyboard. They both are called input devices. Now learn to operate the mouse.
जब हम अपने कंप्यूटर के साथ काम करते हैं तो हम ज़्यादातर माउस और कीबोर्ड की हेल्प लेते हैं। ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं। आज हम माउस को ऑपरेट करना सीखते हैं। यूजिंग द माउस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस यूज्ड विद कंप्यूटर. It is used to interact with the computer in Windows environment. A mouse usually has 3 buttons, the right button and the left button, and a wheel. Some mice have more than 3 buttons. You can perform the following functions with the mouse. अब हमारा जो माउस होता है वो सबसे अहम हमारी डिवाइस होती है, जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर के साथ काम कर सकते हैं। इस पर ज़्यादातर 3 बटन्स होते हैं, एक स्क्रॉल बटन, एक राइट और एक लेफ़्ट बटन। किसी किसी माउस में बहुत ज़्यादा बटन्स भी होते हैं। हम माउस के साथ ये सारी जो फंक्शंस नीचे लिखे गए हैं ये यूज़ कर सकते हैं। आज इनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, पॉइंटिंग. When you move the mouse, an arrowhead appears on the screen. This arrowhead is called the pointer. Touching an object with the pointer is called pointing. जब हम अपना माउस मूव करते हैं तो एक एरो हमारी स्क्रीन पर शो होता है जिसे हम पॉइंटर कहते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट हम उसके थ्रू क्लिक कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम पॉइंटिंग कहते हैं. क्लिकिंग. Depressing the left hand button and releasing it is called a click. लेफ़्ट हैंड बटन को प्रेस करना और उसे छोड़ देना, इसे हम क्लिकिंग कहते हैं. डबल क्लिकिंग. प्रेसिंग द लेफ़्ट हैंड बटन ट्वाइस इन क्विक सेशंस इज़ कॉल्ड डबल क्लिकिंग. हम किसी भी चीज़ पर 2 बार ज़्यादा ज़ोर देकर उसे छोड़ें तो उसे हम डबल क्लिकिंग कहते हैं. राइट क्लिकिंग. क्लिकिंग द राइट बटन वंस एंड रिलीजिंग इट कॉल्ड राइट क्लिकिंग. इट एक्चुअली ओपन्स अ मेन्यू. अब हम किसी भी राइट हैंड बटन को क्लिक करेंगे और उससे हम छोड़ देंगे तो हम उसे राइट हैंड क्लिकिंग कहते हैं. इससे हम कोई भी मेन्यू खोल सकते हैं. टर्न द पेज. ड्रैगिंग. क्लिकिंग एंड होल्डिंग डाउन द लेफ्ट हैंड माउस बटन एंड मूविंग द माउस इन सम डायरेक्शन इज कॉल्ड ड्रैगिंग. क्लिक करना और उसे पकड़ कर माउस को इधर उधर घुमाना किसी भी डायरेक्शन में, हम उसे ड्रैगिंग कहते हैं. वी विल लर्न लेटर हाउ टू यूज़ दीज फंक्शंस फॉर सर्टेन पर्पसेस. हम ये बाद में सीखेंगे कि इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं. ओपनिंग अ विंडो और प्रोग्राम फॉर अ सर्टेन लोकेशन. Opening a window program from the desktop, you see different icons of programs or application on the desktop. In order to open any of them, do the following. अब कोई भी विंडो या प्रोग्राम हम डेस्कटॉप से कैसे खोलें. अब जैसे कि आप अपने डेस्कटॉप पर बहुत सारे आइकन्स, प्रोग्राम्स वगैरह देख सकते हैं. हम उन्हें खोलें कैसे. खोलने के लिए हमें ये सारे पॉइंट्स जो हैं लिखे हुए हैं ये फॉलो करने पड़ेंगे. Point the mouse at the application you want to open. Double click now and the application opens. जो भी हमारी एप्लीकेशन जिसे हमें खोलना है वहाँ पर माउस को ले जाकर पॉइंटर वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, हमारी एप्लीकेशन खुल जाएगी. यू कैन ऑल्सो ओपन अ प्रोग्राम बाय राइट क्लिकिंग इट्स आइकॉन एंड देन क्लिकिंग ओपन इन द मेन्यू. अब अगर हमें हमारा दूसरा तरीका ये है कि राइट वाले बटन को हम प्रेस करेंगे और फिर हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें ओपन लिखा हुआ होता है, हम उसे क्लिक करेंगे. ओपनिंग अ विंडो प्रोग्राम फ्रॉम द स्टार्ट बटन. व्हेन यू क्लिक द स्टार्ट बटन देयर अपीयर्स अ मेन्यू इन द अपवर्ड डायरेक्शन. दिस टाइप ऑफ मेन्यू दैट अपीयर्स अपवर्ड अ बटन ऑन क्लिकिंग इज कॉल्ड अ पॉपअप मेन्यू. इन दिस पॉपअप मेन्यू यू सी वेरियस बटन्स. One of them, for example, all programs, point on the all program button. Now another menu appears. On this menu there is a button with the name of accessories. Click it and you see that a submenu appears down. Such a menu as appears. Menu select a choice from another menu is called cascading menu. In this cascading menu you see a button called calculator. Move the cursor upon it and click it. You see that menu disappears and another window opens. This is the window of calculator application. In the same way you can open any other application on your computer. If there is no icon for an application on the desktop, you can open it from the start menu. अब क्या हम अपनी
स्टार्ट बटन से कोई भी मेन्यू या विंडो प्रोग्राम कैसे ऑन करते हैं। पहले तो हम स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे, वहाँ पर एक ऊपर से मेन्यू आ जाएगी जिसे हम पॉपअप मेन्यू कहते हैं। अब पॉपअप मेन्यू में बहुत सारे बटन्स होंगे, उसमें एक ऑल प्रोग्राम नाम का भी बटन होगा जिसे हम क्लिक करेंगे तो एक दूसरी मेन्यू आ जाएगी और वहाँ पर एक्सेसरीज़ के नाम से एक बटन होगा, हम उसे क्लिक करेंगे, फिर उसके नीचे हमारे सब मेन्यू ओपन हो जाएगा जो नीचे से होता है और उसमें हमारी सिलेक्ट की हुई कुछ चीज़ें होती हैं, हम उसे कहते हैं कास्केडिंग मेन्यू। अब इस कास्केडिंग मेन्यू में आप एक बटन देख रहे होंगे कैलकुलेटर, फिर हम अपना कर्सर मूव करके उसे क्लिक करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर खुल जाएगा। ऐसे ही हम बहुत सारी एप्लीकेशन स्टार्ट बटन से खोल सकते हैं। अगर किसी एप्लीकेशन का या सॉफ्टवेयर का आइकन आपको डेस्कटॉप पर ना दिखाई दे तो आप उसे स्टार्ट बटन से खोल सकते हैं। Opening a window program from search box. In order to open a program through search box, follow these steps. अब हम जो है कोई भी प्रोग्राम विंडो सर्च बॉक्स से कैसे खोलें, अब उसे खोलने के लिए ये सारे स्टेप्स नीचे दिए गए हैं। In the search box, write the name of the program and the matching result start appearing above the search box. अब जैसे ही सर्च बॉक्स में हम उसका नाम लिखेंगे उस प्रोग्राम का, उसके सजेशंस हमें शो होंगे। क्लिक योर डिज़ायर्ड रिजल्ट एंड द एप्लीकेशन ओपन्स। अब जिसे भी आपको चूज़ करना है वो क्लिक करें और आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। अब विंडो एंड इट्स कंपोनेंट। देयर आर 3 विंडोज़। A window is usually the rectangular area of the screen in which we can view an application folder, files or icons. There are several components of Windows that are same for all windows in the Windows 7 and Windows application. When a window appears, it usually has the following components. अब यहाँ पर 3 विंडोज़ हैं। एक विंडो जो है एक्चुअली रेक्टेंगल एरिया होता है स्क्रीन का, जहाँ पर हमें एप्लीकेशन फाइल्स फोल्डर्स वगैरह सब नज़र आते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे विंडोज़ में जो सारे विंडोज़ में सेम होते हैं। जब एक विंडो अपीयर होती है तो उसमें ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। Number 1, title bar. This bar is at the top of the window. It has icons that name of the program running. एक बार होता है सबसे ऊपर जो हमारा आइकॉन शो करता है और प्रोग्राम का नाम बताता है जो चल रहा है। Number 2, menu bar. This is a horizontal bar just below the title bar. It has many pop down menus. When you click on any option on the menu bar, a pop down menu appears for the selection of any option. अब एक हॉरिजॉन्टल बार होता है थोड़ा सा नीचे टाइटल बार के। अब उस पर बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं, बहुत सारे नाम लिखे होते हैं जिनमें पॉप डाउन बार्स होते हैं। जब भी हम किसी भी नेम को सिलेक्ट करेंगे तो पॉप डाउन मेन्यू हमारा अपीयर हो जाएगा। टूल बार। This bar is usually just below the menu bar. It has many buttons that perform direct function in the open application. Sometimes it is in the form of a box somewhere on the window. अब जैसे हमारा टूल बार होता है ये एक्चुअली ऐसा बार मेन्यू बार की तरह और उससे नीचे होता है। उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं किसी भी एप्लीकेशन को खोलने के लिए या उसको चेंज करने के लिए। कभी कभी ये एक बॉक्स के फॉर्म में भी हो जाता है विंडो के किसी भी साइड पर। स्टेटस बार। दिस बार ओपन्स इन सम एप्लीकेशन. इट इन्फॉर्म्स अस ऑफ द स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम रनिंग. इट प्रोवाइड्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन अ डिफरेंट एप्लीकेशन. इट इज़ यूजुअली एट द बॉटम ऑफ एन एप्लीकेशन विंडो. अब जो स्टेटस बार होता है ये किसी एप्लीकेशन में होता है। ये हमें किसी भी प्रोग्राम का स्टेटस बताता है और उसके बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है। ये हमारे एप्लीकेशन विंडो के नीचे होता है आखिर में। स्क्रॉल बार। This is a vertical bar on the right of the open application. Sometimes here is also a horizontal bar on the bottom above the status bar. These bars help us scroll our work up and down or right and left. अब ये स्क्रॉल बार्स जो होते हैं ये एक वर्टिकल बार होता है। ये राइट साइड पर एप्लीकेशन जब हम एप्लीकेशन खोलते हैं ये हमें
या फिर हॉरिजॉन्टल बार में होता है ताकि हम स्क्रॉल कर सकें ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट। विंडो कंट्रोल बटन्स। Window control buttons. When you open an application, there are 3 buttons on the top right hand of the application. These are: number 1, maximum restore button. This is in the middle of the other 2 buttons. It is like a box mark on it. When you click it for the first time, the window expands over the whole screen. This button now changes a little in shape. The sign on it looks like a box or other box. If you click it second time, the window gets smaller in size. We can say that it is restored. अब जब मैक्सिमाइज बटन होता है तो जब हम उस पहला ये 2 बटन्स के बीच में होता है, ये एक बॉक्स की तरह होता है। जब हम इसे पहली बार टच करेंगे विंडो जो है एक्सपेंड हो जाएगी और हम जब इसे दूसरी बार क्लिक करेंगे विंडो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगी। Minimize button. This button is on left of the maximize button. When you click it, it reduces the window to a taskbar button. You will now click it on the task button to open the application again. अब ये जो बटन होता है ये लेफ़्ट साइड में होता है मैक्सिमाइज बटन के। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारी जो विंडो होती है वो टास्क बार में चली जाती है। जब हम इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये टास्क बार से खुलकर दोबारा आ जाएगी। क्लोज बटन। It is on the right of the maximum button. It has a cross on it. If you click it, the application closes. Now you see no button for that program on the taskbar. In order to understand these buttons, open the Paint application. Throw the start button. Here is a diagram that illustrates all the bars and buttons mentioned above. अब ये हमारा जो क्लोज बटन होता है ये मैक्सिमाइज बटन के राइट साइड पर होता है। ये कि हम जब इसे क्लिक करते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन अभी ऑन हुई होती है वो हमारी बंद हो जाती है और फिर टास्क बार पर हमें कोई भी ऐसा बटन नहीं नज़र आता। इन सब बटन्स को समझने के लिए आप पेंट पर इनके डायग्राम्स बनाकर आप इनके फंक्शन समझ सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ड्राइव्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स। अंडरस्टैंडिंग ड्राइव्स, फोल्डर्स एंड फाइल्स। अब ड्राइव्स, फाइल्स और फोल्डर्स की हम मैनेजमेंट कैसे करें और उन्हें कैसे समझें। Data on a hard disk is stored in different places on your computer. To view the data, double-click the computer folder on the taskbar. A window opens on the screen. Some icons are named like this: local disk, C, local disk, D, local disk, E, local disk, F, etc. These are the partitions of the hard drive that stores the data. Each partition is called a drive. Double click on a drive icon, for example local disk D. It opens. When you open it, you see different yellow colored icons which are called folders. अब जब हमारे कंप्यूटर पर हम जब डेटा डालते हैं तो वो डिफरेंट जगहों पर हमारा स्टोर होता है। उन डेटा को देखने के लिए हम कंप्यूटर के फोल्डर को डबल क्लिक करेंगे। वहाँ पर बहुत सारे आइकन्स होंगे जिनका नाम होगा लोकल डिस्क के नाम से C, D, E और F वगैरह। तो ये सारे पार्टीशंस होते हैं हमारे हार्ड डिस्क के जिसे हम ड्राइव कहते हैं। अब किसी भी ड्राइव पर डबल क्लिक करें, जैसे कि हमारा ड्राइव D, जब ये खुलेगी तो यहाँ पर येलो कलर के आइकॉन्स होंगे जिन्हें हम फोल्डर्स कहते हैं। Number 1, drive. A drive or disk is a storage device to store and receive information or data on a computer. Drives are given name as A, B, C, D, etc. अब हमारी जो ड्राइव या डिस्क ड्राइव होती है वो एक स्टोरेज डिवाइस होती है जहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे डेटा वगैरह जो है कंप्यूटर में रखा होता है। हमारे ड्राइव के ऐसे नामों से होती है A, B, C या D वगैरह। Number 2, folder. A folder is a name given to reverse location for data storage. It is used to contain files and subfolders. A folder is indicated by a folder icon. Folders are also called directories. A folder is a place on the hard disk where you can store files of data. अब हमारी जो फोल्डर होता है उसका एक नाम होता है जो हम रखते हैं और वो एक लोकेशन पर
में दूध होता है। इसमें हम बहुत सारे फाइल्स, सब फोल्डर्स वगैरह रखते हैं। ये फ़ोल्डर जो है एक फ़ोल्डर आइकॉन के होता है, उसके बाहर हम फोल्डर्स को डायरेक्टरीज भी कहते हैं। ये हार्ड डिस्क में होती है ताकि हम इसके अंदर अपना डेटा रख सकें। File. A file is a collection of data or information that has a name and can be stored or a storage device. Whenever you work in an application, your work is stored in the form of a file. This file has its own icon. This icon is different from each application. Each file is indicated by the file name and the extension. A dot separates the file name and extension. The extension tells the computer what type of data is stored in the file. अब जो एक फ़ाइल होता है वो डेटा का कलेक्शन होता है या इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जो हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस में होता है। जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन पर काम करते हैं तो हमारा जो काम होता है वो एक जगह पर सेव होता है और वो एक फ़ाइल के फॉर्म में सेव होता है। अब इसका एक अपना आइकॉन है, हर एप्लीकेशन का अपना आइकॉन होता है। हर फाइल होती है उसका अलग नाम होता है, उसकी अलग एक्सटेंशन होती है। एक जो डॉट होता है वो फाइल को एक्सटेंशन से अलग करता है और एक्सटेंशन हमें बताती है कि कंप्यूटर के किस टाइप का हमारा डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, अ फाइल कॉल्ड माई expenses.xlsx is Microsoft Excel worksheet. Sometimes only the file name is shown. The name of the application and extension may or may not appear. अब जैसे कि एक होती है myexpenses.xlsx, ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हमारी फ़ाइल होती है, वर्कशीट होती है। कभी कभी हमारे सिर्फ फ़ाइल का नाम शो होता है, एक्सटेंशन या फिर उसका एप्लीकेशन का नाम कभी शो होता है, कभी नहीं होता। ये सारे एक्सटेंशंस हैं और ये हमारी एप्लीकेशंस हैं। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। 4.1 Creating a new folder and naming it. You can create a folder by doing the following. अब हम कोई भी फोल्डर बनाकर उसे अपना नाम दे सकते हैं। नंबर 1, डबल क्लिक कंप्यूटर फोल्डर। कंप्यूटर फोल्डर को डबल क्लिक करें। नंबर 2, डबल क्लिक द ड्राइव वेयर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। हम जिस भी ड्राइव में अपना फोल्डर बनाना चाहें उस पर क्लिक करें। नंबर 3, पॉइंट द कर्सर एट अ ब्लैंक स्पेस इन द ओपन विंडो। अब हम किसी भी खाली जगह पर अपने कर्सर को पॉइंट करेंगे और उसे राइट क्लिक करेंगे और एक मेन्यू आ जाएगी। पॉइंट एट न्यू अनदर मेन्यू ओपन्स। हम जब न्यू को करेंगे तो एक दूसरी मेन्यू हमारी खुलेगी। नंबर 6, क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन। देयर अ न्यू फोल्डर विद द नेम न्यू फोल्डर इज क्रिएटेड। दिस नेम न्यू फोल्डर इज हाईलाइटेड एंड selected. You can change the folder name by typing the desired name now. अब हम जब फोल्डर को ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट होगा जिसका नाम न्यू फोल्डर होगा और वो हाईलाइटेड होगा जिसे हम डिलीट करके अपना नाम दे सकते हैं। Number 7, if you want to create a new folder in an already existing folder, open the folder where you want to create a new folder and now follow the same process as described above. अगर हमें किसी न्यू फोल्डर को किसी दूसरे फोल्डर में हमें करना है तो वो फोल्डर खोलेंगे और जैसे ऊपर बताया गया है वैसा ही प्रोसेस हम सेम करेंगे। नंबर 8, यू कैन रीच अ डिज़ायर्ड लोकेशन हरीडली बाय डूइंग द फॉलोइंग। अब हमें किसी फाइल में पहुंचना है, हम कैसे पहुंचेंगे जल्दी में, ये हमारे उसके ऑप्शन है। नंबर 1, क्लिक द कंप्यूटर फोल्डर एंड इट ओपन्स। कंप्यूटर को हम क्लिक करेंगे और वो खुल जाएगा। नंबर बी, इन द नेविगेशन पेन ऑन द लेफ्ट देयर इज़ अ कंप्लीट डायरेक्टरी ऑफ योर लिस्ट ड्राइव्स और फाइल्स। जैसे ही हम नेविगेशन पेन खोलेंगे जो हमारे लेफ़्ट साइड पर होता है वहाँ पर हमारे डायरेक्ट ड्राइव्स का पूरा नाम वगैरह सब मौजूद होते हैं। Number C, select a drive from this list. All the folders on that drive shall be indicated in the submenu of that drive. अब जैसे ही हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो एक सब मेन्यू ओपन होगा जिसमें उसके सारे फोल्डर्स के नाम होंगे। नंबर डी, यू कैन ओपन एनी फोल्डर नाउ एंड क्रिएट देयर अ न्यू फोल्डर बाय फॉलोइंग द पॉइंट्स 3 to 6 मेंशन अबव। अब जैसे ही हम वो फोल्डर खोलेंगे फिर हमें वहाँ पर न्यू फोल्डर बनाएंगे जैसे कि ऊपर बोला गया है।
Creating a new file. In order to create a new file, reach the new menu by the following the points 1 to 5 mentioned above. Now point the cursor at the type of the file you want to create and click the option. You can type its new name now. In the same way, a file can be created in any location. अब जैसे कि हमने एक फ़ोल्डर बनाया था, ऐसे ही हम एक फ़ाइल बनाएंगे पूरा। जैसे कि हम न्यू मेन्यू पर जाएंगे, वहाँ पर जैसे स्टेप्स लिखे गए हैं, अब फिर कर्सर को हम जो है टाइप्स ऑफ फाइल्स पर जाएंगे और जिस हमारी टाइप में हमें अपनी फ़ाइल चाहिए होती है वो क्लिक करेंगे और हमारी फ़ाइल बन जाएगी किसी भी लोकेशन में। रीनेम एन एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर. In order to give a new name to an already existing file or folder, or do the following. Number 1, point the cursor at the file or folder you want to rename. अब हम किसी भी फाइल फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। उसका पॉइंट जो है फाइल पर कर्सर रख के उसको जिसको भी हमने रीनेम करना है उस पर रख कर। नंबर 2, क्लिक राइट नाउ अ न्यू मेन्यू अपीयर्स. अब जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे एक न्यू मेन्यू अपीयर होगा. नंबर 3, क्लिक एट द रीनेम ऑप्शन इन द मेन्यू. नाउ द ओल्डर नेम शैल बी हाईलाइटेड इन अ बॉक्स. अब जैसे ही हम रीनेम के ऑप्शन को क्लिक करेंगे वहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा जहाँ पर पुराना नाम उसका हाईलाइटेड होगा. नाउ टाइप द नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर. अब जो भी नाम या आपने रखना है वो रख लें. 5, press the enter key from the keyboard. The folder or file gets renamed. अब जैसे ही हम इंटर करेंगे कीबोर्ड से तो हमारा जो है नाम वो सेव हो जाएगा. Copying a file or folder to another location. In order to copy a file or folder, reach the location where you can see the file or folder. Right click on now on the closed folder or file icon. There appear a small menu. Select the copy option from the menu. The file or folder is copied. Now you can paste this exact copy of file or folder anywhere you like. Do the following in order to paste the file or folder. अब हम जैसे ही अब एक फ़ाइल है हमें कहीं और चाहिए तो हम उसे कॉपी कर सकते हैं. हम कैसे कर सकते हैं, हम वो नीचे ये स्टेप्स मेंशन हैं, आ जाए हम उन्हें करते हैं. नंबर 1, इफ़ यू हैव कॉपीड अ फाइल और फोल्डर, ओपन द लोकेशन ड्राइव और फोल्डर वेयर यू वांट टू पेस्ट दिस कॉपी. अब जैसे कि हमने कोई कॉपी की हुई हो, वो फाइल और फोल्डर हम किसी भी लोकेशन या ड्राइव में रख सकते हैं. नंबर 2, राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी एरिया इन द ओपन विंडो. अ मेन्यू अपीयर्स. अब राइट क्लिक करेंगे हम किसी भी खाली जगह पर. अब जैसे ही राइट क्लिक करेंगे एक मेन्यू आएगी. Number 3, click the paste option from this menu. The copy of the file or folder is pasted here. अब जो वहाँ पर एक pasted नाम का ऑप्शन हैगा वो उसे हम सिलेक्ट करेंगे और उसे कॉपी फाइल जो होगी हमारी वो पेस्ट हो जाएगी. Here is another way of copying file or folder. Ctrl+C. हम किसी भी कॉपी को किसी भी फाइल को कैसे कॉपी कर सकें शॉर्टकट की से. नंबर 1, क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर टू बी कॉपीड. द फोल्डर और फाइल इज़ हाईलाइटेड एंड सिलेक्टेड. हम जो भी हमारी फाइल या फोल्डर होगा हम उसे क्लिक करेंगे फिर वो हाईलाइट हो जाएगा. नंबर 2, प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की ऑन द कीबोर्ड. प्रेस द C की ऑन द कीबोर्ड. द फाइल इज़ कॉपीड. हम प्रेस करेंगे इस कंट्रोल की को और उसे पकड़े रहेंगे और हम C को प्रेस कर देंगे तो वो हमारी कॉपी हो जाएगी फाइल. नंबर 3, ओपन द ड्राइव और फोल्डर वेयर यू वांट टू पेस्ट इट. अब वो फाइल खोलें जहाँ पर आपने पेस्ट करनी है. नंबर 4, Ctrl+V. प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की ऑन द कीबोर्ड. नाउ प्रेस द V की while holding the control की. द फाइल और फोल्डर गेट्स पेस्टेड here. अब जैसे हमने Ctrl+C किया था ऐसे ही हम Ctrl+V करेंगे और हमारी फाइल जो है पेस्ट हो जाएगी. ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग अ फाइल और फोल्डर टू कॉपी इट अनदर और लोकेशन. किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रैग करना. You can copy a file or folder to another folder by dragging it to another location. Point the cursor at some file or folder. Now click and hold
The left click button move the cursor in any direction. An image of the file or folder also move along. This is called dragging. To copy filing by dragging to the following. अब हम किसी भी एक फ़ाइल को दूसरी जगह खींच कर रख सकते हैं. आप कैसे रख सकते हैं वो नीचे मेंशन किया गया है. नंबर 1, ओपन कंप्यूटर फोल्डर ऑन करें. नंबर 2, ओपन द फोल्डर कंटेनिंग अ फाइल टू बी ड्रैग्ड. अब वो फोल्डर खोलें जहाँ पर वो फाइल पड़ी हुई है. नंबर 3, पॉइंट द कर्सर एट द फाइल टू बी कॉपीड. प्रेस लेफ्ट माउस बटन एंड होल्ड इट. नाउ प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड. अब जो भी फाइल है वहाँ पर हम कर्सर रखेंगे और फिर लेफ़्ट माउस बटन से हम उसे प्रेस करेंगे और उसे पकड़ेंगे. अब हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से. Drag the file to the drive where you want to copy the file. It opens the folder in that drive as well. Drag the file to be a desired folder. When that is highlighted, release the mouse button. The file gets copied there. This is called dropping. You can drag and drop folders in the same way. अब फिर जो है हम वो फाइल को ड्रैग करेंगे और फिर जहाँ पर हमें रखनी है वो ड्राइव खोलेंगे, वो फोल्डर खोलेंगे और वहाँ पर जाकर उसे पेस्ट कर देंगे. ऐसे हम ड्रॉपिंग कहते हैं. अब हम जो है फोल्डर्स भी ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. कटिंग अ फोल्डर एंड पेस्टिंग इट टू अनदर फोल्डर और लोकेशन. बाय कटिंग एंड देन पेस्टिंग यू मूव अ फाइल और फोल्डर टू अनदर लोकेशन. इट इज़ डन बाय डूइंग द फॉलोइंग. अब हमारा जो कट एंड पेस्ट होता है वो मतलब एक जगह से एक चीज़ को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर प्लेस करने को हम कहते हैं. अब वो हम कैसे कर सकते हैं नीचे वाले स्टेप्स से. नंबर 1, फाइंड द फाइल और फोल्डर. अब जो भी हमें फाइल करनी है हम उसे सिलेक्ट करेंगे. नंबर 2, पॉइंट द कर्सर एट द फाइल और फोल्डर एट राइट क्लिक. अ मेन्यू अपीयर्स. जब हम उसे सिलेक्ट करेंगे तो फिर हम राइट क्लिक करेंगे और एक मेन्यू आएगा वहाँ पर. नंबर 3, मूव द कर्सर टू द कट ऑप्शन एंड देन लेफ़्ट क्लिक. फिर वहाँ पर कट ऑप्शन आएगा, हम वहाँ पर ले जाएंगे कर्सर को और क्लिक कर देंगे. नंबर 4, नाउ रीच द फोल्डर और ड्राइव वेयर यू वांट टू पेस्ट इट. अब जहाँ पर हमने वो फोल्डर रखना है या फाइल रखनी है वहाँ पर जाएंगे. नंबर 5, राइट क्लिक ऑन द फोल्डर और ड्राइव वेयर यू वांट टू पेस्ट द फाइल और फोल्डर. अब मेन्यू अपीयर्स. जब हम जहाँ पर उस फोल्डर में राइट क्लिक करेंगे जहाँ पर हमें अपनी फ़ाइल रखनी है एक मेन्यू आ जाएगा. मूव द कर्सर टू पेस्ट ऑप्शन एंड देन लेफ़्ट क्लिक इट. द फाइल गेट्स मूव टू द फोल्डर नाउ. अब हम उस मेन्यू में से पेस्ट को ढूंढेंगे, वहाँ पर जाकर क्लिक कर देंगे कर्सर और हमारी फ़ाइल वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी. डिलीट अ फाइल और फोल्डर. यू कैन डिलीट अ फाइल और फोल्डर बाय डूइंग द फॉलोइंग. हम किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं. नंबर 1, राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर टू बी डिलीटेड. अ मेन्यू अपीयर्स. जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे जिस फोल्डर को हमें डिलीट करना है एक मेन्यू आ जाएगा. नंबर 2, पॉइंट द कर्सर डिलीट ऑप्शन इन दिस मेन्यू एंड लेफ्ट क्लिक. अ कन्फर्मेशन बॉक्स अपीयर्स. जैसे ही हम अपना कर्सर उस डिलीट ऑप्शन पर लेकर जाएंगे उस मेन्यू में से हम उसे लेफ़्ट क्लिक कर देंगे और हमारा कन्फर्मेशन बॉक्स आ जाएगा. नंबर 3, क्लिक ऑन द येस ऑप्शन इन द बॉक्स. द फाइल इज़ डिलीटेड फ्रॉम दैट लोकेशन. दिस डिलीटेड फाइल मूव्स टू द रिसाइकल बिन. अब जैसे ही हम येस करेंगे वो फाइल डिलीट होकर रिसाइकल बिन में चली जाएगी. Here is another way to delete a selected file or folder. हम अब डिलीट करने का एक और तरीका भी है. लेफ़्ट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर टू बी डिलीटेड. इट गेट्स सिलेक्टेड. नाउ प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड. अ confirmation box appears. Click the yes option. The selected file or folder is deleted from the करंट लोकेशन. इट नाउ मूव्स टू द रिसाइकल बिन. अब जैसे ही हम उस फोल्डर को लेफ़्ट क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी. फिर हम डिलीट बटन को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और हमारी फ़ाइल वहाँ से डिलीट होकर रिसाइकल बिन में चली जाएगी. हेयर इज़ स्टिल अनदर वे टू डिलीट अ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर. अब एक और तरीका भी है, उसे भी देखते हैं. सिलेक्ट अ फाइल और फोल्डर फॉर डिलीशन. प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की ऑन द keyboard and then press the D key. A confirmation window appears. Click on the yes option. The selected file or folder is deleted from
the current location, it now moves to the recycle bin. अब हम जिस फोल्डर को डिलीट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर Ctrl+D को प्रेस करेंगे, हमारी फाइल जो है डिलीट होकर रिसाइकल बिन में चली जाएगी. So that's all about our reading. Let's solve its exercises. So here it is our exercise. Question number 1, what is window? Can your computer run window properly without it? Answer, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ माउस? आंसर, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन फाइल एंड फोल्डर, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? ये हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. थर्ड लाइन, स्टोरेज. नंबर 4, इज़ इट ऑलवेज पॉसिबल टू रिस्टोर अ डिलीटेड फाइल और फोल्डर? एक्सप्लेन. ये हम पूरा आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द विंडोज़? ये भी आंसर हम पूरा लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक. क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन शॉर्ट कीज फॉर कटिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग अ फाइल और फोल्डर. आंसर पूरा लिखेंगे. सर्कल द बेस्ट पॉसिबल आंसर. Number 1, what recognize input from the keyboard and other input devices? C. Number 2, the windows ahead that moves on the screen when you move the mouse is called? B. Number 3, where is the start button located on the desktop? D. Number 4, the bar just below the title bar is called? A. Number 5, a dash has a name and an extension? C. Fill in the blanks. Number 1, the clock button is displayed in the dash area, notification area. Number 2, a menu that appears in upward direction is called a dash menu, pop-up menu. Turn the page. Number 3, the close button is on the right of dash button, maximize. Number 4, the dash option allows you to easily navigate through different locations, explore. Number 5, files of the same applications with the same name cannot stay in the same dash folder. Number 6, deleted files can be restored to their source location from the dash recycle bin. Write T if the statement is true and F if the statement is false. Number 1, Windows cannot link various computers. False. Scroll bar is along the bottom of the desktop. False. Number 3, a dot separates the file name and extension. True. Number 4, when you press and hold the shift key, the dragged and dropped file or folder is moved to the new location. True. Number 5, Ctrl X is the short key to copy a file or folder. False. हाँ, मैच द कॉलम A विद कॉलम B. अब ये हमारे कॉलम्स हैं, ये हमें आपस में मैच करने हैं. नंबर 1, पॉइंटर, माउस. नंबर 2, प्रोग्राम्स, स्टार्ट मेन्यू. नंबर 3, Ctrl C, कॉपी. नंबर 4, ओपन अ फाइल. D, डबल क्लिक. नंबर 5, डिलीट आइटम. Number B, recycle bin. Come on, next page, students. Label the component of the desktop. ये नंबर्स दिए गए हैं आपको और आपने इन्हें ये यहाँ पर भी मेंशन किए गए हैं नंबर्स. जिस नंबर में जो नंबर नाम आ रहा है आपने वो फिल करना है. ये सिर्फ आपने अपने बुक में उतारना है. So that's all about its reading and exercises. We will see you soon in our next video. Thank you.